Good morning, students. Then let's start today's topic. Earlier, we have discussed about the attributes of the body tag. Once again, I repeat what is attribute. The definition of attribute is attributes are the extra features that can be added to the tags to change or enhance the appearance of the web page. वेब पेज के लुक को चेंज करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं. एंड वी हैव डिस्कस्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द body tag in which the two attributes bg color and text which have already discussed. The use of bg color is, what is the use of bg color is used to change the color of the web page. इसके थ्रू हम लोग वेब पेज के कलर को चेंज करते हैं. And the next attribute is text, which is used to change the color of the text in the web page or change the color of the contents which are displaying in the web page. Now it was your HW, learn about the hexadecimal value for the color. Then today we will discuss what is the hexadecimal value. Firstly, write down what is the hexadecimal value. Hexadecimal value, then write down it is the combination of red which is represented as RR, comma, green which is represented as GG, and blue which is represented as BB. It is the combination of red, green and blue color. Then how it can be used? Then see here, this is our web page which was created. Open it. Okay, this was our web page in which BG color is yellow, that means the web page color is yellow and text color is green. Then open it with notepad. मैं इसे notepad के साथ ओपन कर ले रहा हूँ इसके कोड को देखने के लिए. Okay, BG color is equal to, this is the value. Okay, then the hexadecimal value of combination is like this: hash 00000 6 times. The first two zero represent the color red, next 20 represent the color green, and next 20 last 20 is represent the color blue. If we want to set the BG color as red, then how we can write in the hexadecimal value? अगर मुझे इसे रेड करना है वेब पेज के कलर को तो मैं उसे BG कलर में किस तरह से यूज करूंगा? See here, BG color is equal to yellow. If we will write red, then it will become red. But I want to use hexadecimal value. What is the hexadecimal value? Sorry, open the code. Okay, मुझे hexadecimal value को यूज करना है. Then write here hash, and we want to change the color as red. Then give here FF, that means full. Red color is full and rest of the color is 00 00 00. Okay, see the effect क्या होता है? Okay, this is red. Then again, if we want to change the color in blue, then first 20 and we want to change the color in green, then here
ये जो बीच वाला डबल जीरो है, ये जो मिडिल का डबल जीरो है, ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। देन राइट हेयर एफ एफ, दैट मीन्स ग्रीन कलर इज फुल and the rest of the color is 0. Last two color, that means blue, is 0. See here the effect. Okay, this is green and if you want to change the color in blue, अगर मैं उसे blue में change करना चाहता हूँ, then see the effect. The first two color is 0 and the last color is blue full. See here the effect. Okay, this is blue, this is the hexadecimal value. अब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को मुझे यूज कैसे करना है, ये तो मैंने 3 कलर्स के लिए यूज कर लिया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. एंड इफ यू वांट टू चेंज इन अदर कलर्स, देन यू हैव टू मेमोराइज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल वैल्यू. इफ यू वांट टू चूज द ब्लैक, देन 0 0, ऑल कॉम्बिनेशंस आर 0. देन सी द इफेक्ट. अगर मैं इसे ब्लैक करना चाहता हूं, देन सी ब्लैक. इफ यू वांट टू चेंज द कलर इन व्हाइट, देन ऑल कलर्स आर फुल. सी डबल एफ डबल एफ डबल एफ, 0 नहीं देना है मुझे सारे कलर्स को व्हाइट करने के लिए. See here, white, by default color is white. तो हम लोगों ने हेक्साडेसिमल वैल्यू को जान लिया. ओके, मैं इसे वापस ले रहा हूँ अब उसी तरह से. रेड, ये मैंने वैल्यू देकर दिया है. दिस इज द टेक्स्ट वैल्यू. दिस इज इजी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. Today's next topic is our next attribute. The next attribute is background. What is the use of background attribute? Then write down background. Write down, it is used to set the image as a background of the web page. अगर अपने वेब पेज पर मैं किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करूंगा. नाउ अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को किस तरह से मुझे यूज करना है. मिनिमाइज इट. सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है अपने कंप्यूटर पे कौन सा मेरे पास पिक्चर्स. तो मैं सबसे पहले अपने पिक्चर को फाइंड कर ले रहा हूँ. मेरे लिए यहाँ पर क्या पिक्चर अवेलेबल होंगे. ओके, तो मैं इस डिजर्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे डेस्कटॉप पर ले आता हूँ. मैंने डेस्कटॉप पर उसे ले आया है. पिक्चर नेम इज डिजर्ट. फर्स्टली यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द पिक्चर. मैंने इसे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर गया और मैंने इसके टाइप को देखना है. व्हाट इज द टाइप ऑफ द फाइल, इसका कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप का पिक्चर है. क्या ये जेपीजी है, क्या ये बीएमपी है, क्या ये पीएनजी है, मुझे उसके टाइप को देखना होता है. देन सी हियर टाइप ऑफ फाइल. टाइप ऑफ फाइल इज डॉट जेपीजी. ओके, टाइप ऑफ फाइल इज डॉट जेपीजी. देन ओके, दिस इज आवर कोड. मैं इन सभी एट्रीब्यूट्स को हटा ले रहा हूँ, इसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है अब. ओके, एंड राइट डाउन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड. राइट हियर बैकग्राउंड इज इक्वल टू सी द पिक्चर नेम. मेरे लिए पिक्चर नेम क्या है, डिजर्ट. देन राइट डाउन हियर इन डबल कोट. मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, स्मॉल में भी लिख सकता हूँ. आई एम राइटिंग दिस डिजर्ट. एंड मैंने अभी टाइप बताया था, मैंने इसके प्रॉपर्टीज को ओपन करके बताया ये कौन सा पिक्चर है, कौन सा टाइप का पिक्चर है. देन टाइप क्या है, डॉट जेपीजी. राइट हियर बैकग्राउंड इज इक्वल टू डिजर्ट डॉट जेपीजी. एंड सेव इट अगेन, कंट्रोल एस, और यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सेव. Open the web page and refresh it. Okay, see here
पिक्चर मेरा अवेलेबल हो गया, पिक्चर मेरा अपीयर हो रहा है और मैंने इसको एज ए बैकग्राउंड, वेब पेज के एज ए बैकग्राउंड मैंने इसको यूज किया है. दिस इज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग. ओके, देन नेक्स्ट, the next attribute, top margin and left margin. तो जैसे हम लोग अपने कॉपी पर स्पेस देते हैं, टॉप से भी मेरे लिए कुछ स्पेस होते हैं, लेफ्ट से भी मेरे लिए स्पेस होते हैं. उस स्पेस को हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के लैंग्वेज पर मार्जिन बोलते हैं. अगर ये टॉप मार्जिन, टॉप से मुझे कुछ स्पेस छोड़ना है अपने वेब पेज पर, लेफ्ट से मुझे स्पेस छोड़ना है अपने वेब पेज पर, तो मैं इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज करूँगा, टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन. हम लोग वेब पेज पर देख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज. ये टॉप से ये बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी मार्जिन नहीं है. एंड लेफ्ट से भी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी मार्जिन नहीं है. तो अगर हम लोग टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ से स्पेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जहाँ से मेरा टेक्स्ट जो है, कंटेंट जो है वो अपीयर होगा. मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट और स्पेस के बाद डिस्प्ले हो, तो हम लोग टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का यूज करेंगे. अब इसे यूज कैसे करना है, हियर write down the code. Top margin is equal to, give the space in pixel, 30 pixel. I want to use the 30 point. After 30 point from the top, our content will be displayed. And from the left margin, okay, 30. You can change the value 40. कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जहाँ से मुझे उसे अपीयर करना है, जहाँ से मुझे उसे डिस्प्ले करना है, हम लोग वहाँ पर जाकर के वैल्यू को सेट कर सकते हैं. सी द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है अब हम लोग देख लेते हैं. अभी मेरा वेब पेज दिख रहा है, ये कोई स्पेस नहीं है, ये दिस इज आवर कंटेंट, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज. नाउ प्रेस द F5 बटन. ओके, सी हियर स्पेस, ये पहले यहाँ से अपीयर हो रहा था, मैंने मार्जिन को सेट किया टॉप से एंड लेफ्ट से. अब जो मेरा कंटेंट्स है वो इस जगह से डिस्प्ले हो रहा है. अगर हम लोग इसे और भी चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं इसे इंक्रीज करके भी बता दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से डिस्प्ले करना है 100 फ्रॉम द टॉप. देन सी द इफेक्ट. ओके, 100. दिस इज द 100 पॉइंट फ्रॉम द टॉप एंड द कंटेंट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द 100 पॉइंट फ्रॉम द टॉप. यहाँ से ये डिस्प्ले होगा. इस तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्पेस को, विच इज कॉल्ड टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट. ओके, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक. अभी हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक विच इज यूज्ड फॉर द हाइपरलिंक. जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हाइपरलिंक के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरलिंक हम लोग जानते हैं वो ऐसा टेक्स्ट जिसे क्लिक करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, अदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उसे हम लोग हाइपरलिंक बोलते जाता है. उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है. जब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो मुझे ओपन करना है वो ओपन हो जाता है. बाय डिफॉल्ट कलर इसका क्या है, वो ब्लू है. इफ वी वांट टू चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू अदर कलर, देन वी कैन यूज दीज एट्रीब्यूट्स, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक. तो इसलिए जब मैं इसे डिस्कस करूंगा, हाउ टू क्रिएट द हाइपरलिंक इन द वेब पेज, देन वी विल डिस्कस दीज 3 एट्रीब्यूट्स. तो अभी तक मैंने हाइपरलिंक को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, ना ही इस चैप्टर में मुझे हाइपरलिंक बनाना है, इसलिए मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा. जब मैं हाइपरलिंक को क्रिएट करूंगा तभी हम लोग इसके प्रैक्टिकल को समझ सकते हैं ये किस तरह से वर्क करता है. सो लीव दैट लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक फॉर जस्ट नाउ. अभी के लिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं. ओके, तो पेज नंबर 46 में हम लोगों के लिए लैब असाइनमेंट दिया हुआ है. ये लैब असाइनमेंट मैं नहीं बनाऊंगा, ये स्टूडेंट को बनाना है और ये चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है. और यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा हुआ है
राइट HTML कोड्स टू डिस्प्ले योर स्कूल्स लोगो इन द बैकग्राउंड। ये लोगो हम लोगों को नेट पर भी मिल जाएगा, और अगर स्कूल का लोगो हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है तब भी किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करके बताना है अपने बैकग्राउंड में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट HTML कोड्स टू डिस्प्ले योर पर्सनल डिटेल्स ऑन इन द वेब पेज। अब ये पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा एंड सो ऑन। तो इन सभी को अपने के लिए डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज बनाना है, बट हियर इज कंडीशन इज बैकग्राउंड इन ब्लू एंड द टेक्स्ट इज इन वाइट कलर। जो टेक्स्ट का कंटेंट का जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर होना चाहिए, और जो मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लू कलर का होना चाहिए। देन यू विल मेक इट। देन टुडे वी विल डिस्कस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंटेशन टैग्स। ओके, राइट डाउन व्हाट इज प्रेजेंटेशन टैग। Presentation tags. What is presentation tag? Write down. Presentation tags are those tags which are used to give the style to the contents of web page. Example, making the text italic, bold, colorful, etc. Then presentation tags क्या होता है? Presentation tags are those tags which are used to give the style to the contents of web page. वेब पेज पर जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी मैटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर मुझे उसे स्टाइल में देना है, स्टाइल दैट मीन्स मैंने एग्जांपल लिख दिया है, अगर मुझे उसे कर्सिव में लिखना है, अगर मुझे उसे बोल्ड बनाना है, अगर मुझे उसे कलरफुल बनाना है, देन वी कैन यूज द प्रेजेंटेशन टैग्स। अब ये प्रेजेंटेशन टैग्स में मुझे क्या क्या टैग्स जानने हैं, देन राइट डाउन। फर्स्ट टैग इज फॉन्ट टैग, सेकंड बोल्ड, थर्ड आई, फोर्थ यू, फिफ्थ HR टैग। देन लेट्स स्टार्ट विद द फॉन्ट टैग। हम लोग फॉन्ट टैग के थ्रू इसे जानेंगे। What is font tag? Write down. It is a container tag which is used to set the color, size and face of the text। ये कंटेनर टैग है जिसे हम लोग टेक्स्ट के कलर, साइज एंड फेस को चेंज करने के लिए यूज करेंगे। तो इसे यूज कैसे करना है, ओके, ओपन द प्रोग्राम। ये सभी एट्रीब्यूट्स को अभी मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे प्रेजेंटेशन टैग के इफेक्ट को देखने मिलेगा। ओके, देन
नाउ इट इज अ सिंपल वेब पेज। सॉरी मैंने सेव नहीं किया है, सेव कर दिया। ओके, this is a simple web page, only contents is displaying in the web page. This is my first web page and the contents is simple. इसमें कोई भी कलर नहीं है, ना ही ये बोल्ड है, ना ही मैंने इसके फेस को चेंज किया है। दिस इज द सिंपल कंटेंट्स। नाउ अब मुझे प्रेजेंटेशन टैग, जिसमें कि फॉन्ट टैग को यूज करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। मैं यहां पर इस प्रेजेंटेशन टैग को यूज करता हूं। राइट हेयर फॉन्ट, एंड फॉन्ट टैग हैज 3 attributes. फर्स्ट, कलर, color, color, you have to write color, not like this, color. Okay, we have to follow the spelling color. Font, this is the attribute of the font tag. Color, color is equal to, give here the value red. Okay, next attribute is size. Size here write down 5, and the next attribute is face is equal to, write down Arial black. ओके, दिस इज द कंटेनर टैग। मैं क्या चाहता हूं कि जो ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, सिर्फ इसी पर इसका इफेक्ट हो। देन आफ्टर द फर्स्ट लाइन यू हैव टू क्लोज द फॉन्ट टैग। ओके, सी द इफेक्ट, कंट्रोल S F5। ओके, तो हम लोग फिर से प्रोग्राम पर वापस आते हैं। ओके, मुझे इस फर्स्ट वाले लाइन पर प्रेजेंटेशन टैग को यूज करना था। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन से पहले, लाइन स्टार्ट होने से पहले मैंने फॉन्ट टैग को यहाँ पे यूज किया है, एंड फॉन्ट टैग वहाँ पर मैं लिखना भूल गया जब मैं फॉन्ट टैग को डिफाइन कर रहा था, तो इसे हम लोग वहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन हियर, इट हैज 3 attributes. फर्स्ट, कलर, और मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंड इज साइज, यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। And third, face, used to change the style, that means face of the text. These are the 3 attributes. और मैं इसे किसी भी सीक्वेंस में दे सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले मैं कलर लिखूंगा फिर साइज लिखूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसे किसी भी सीक्वेंस में चेंज कर सकता हूँ। साइज को भी पहले लिख सकता हूँ, फेस को भी पहले लिख सकता हूँ, या कलर को भी पहले लिख सकता हूँ। इसे मैं किसी भी सीक्वेंस पर अरेंज कर सकता हूँ। देन मुझे इस फर्स्ट वाले लाइन को चेंज करना था, जिसका कलर मुझे रेड करना था। साइज भी इससे मुझे बोल्ड बनाना था, लार्ज बनाना था, और इसके फेस को, स्टाइल को भी चेंज करना था। तो मैंने यहाँ से यूज कर लिया फॉन्ट कलर रेड, ये रेड हो गया। साइज 5, सीधा साइज ऑफ द सेकेंड लाइन। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है मेरे वेब पेज के कंटेंट्स का, वो 3 होता है। देन द सेकेंड लाइन, साइज ऑफ सेकेंड लाइन इज बाय डिफॉल्ट 3, और मैंने यहाँ पर जो साइज को डिफाइन किया है दैट इज 5। तो ये जो कलर है रेड, और इसके फॉन्ट का साइज 5, एंड द फेस इज इक्वल टू एरियल ब्लैक। अब ये एरियल ब्लैक क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे क्लोज कर ले रहा हूँ यहाँ से, और मैं बता दे रहा हूँ ये फेस क्या है। जब हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं, मैं ओपन कर ले रहा हूँ,
ओके, दिस इज ओपन और मैंने यहाँ पर लिखा है DAV। अब मैं इसे दूसरे स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, DAV, देन सी हियर दिस इज द फॉन्ट and click on it. There are different types of fonts, so many fonts. If we want to use any type of font, then simply you have to click. Suppose मैं यहाँ से ओके Comic Sans MS, Comic Sans MS, see the style, okay, see the style and next Arial Black, जो अभी मैंने वहाँ पर यूज किया था, Arial Black, see the style। तो अब मैं वहां पर कॉमिक सेंस MS को यूज करके बताऊंगा, कॉमिक सेंस MS। ओके, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो अपीयर नहीं होगा। ओके, राइट हेयर, कॉमिक सेंस MS, सेव इट। ओके, ये फर्स्ट वाले लाइन को हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, दिस इज चेंज्ड, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब जो ये फॉन्ट है वो है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, और जो मैंने यहाँ पर फेस को यूज किया है वो है मेरे लिए कॉमिक सेंस MS। तो ये क्या करता है, कंटेंट्स के स्टाइल को, फेस को चेंज करता है। कंटेंट्स किस तरह से अपीयर होगा, कौन से स्टाइल में अपीयर होगा, उसके लिए हम लोग इस थर्ड वाले एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द साइज अगेन, देन राइट हियर 6, save it, okay, 6। if you want to change the color in other color, then right here green, ओके, ग्रीन। और भी कलर होते हैं, जैसा तुम्हें यूज करना है वैसा कलर को हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज इफ वी वांट टू यूज द पिंक कलर, देन राइट डाउन हियर पिंक, ओके, पिंक। yellow, and if you want to change the color, size and so on, जो भी फेस है, अगर इससे मुझे पूरे कंटेंट्स पर अपीयर करना है, पूरे कंटेंट्स पर अप्लाई करना है, तो मैं इस फॉन्ट टैग को यहाँ पर क्लोज नहीं करूँगा। दिस इज कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब है जहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया, इसका इफेक्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फॉन्ट टैग के बीच जो भी मेरा कंटेंट्स है वो डिस्प्ले हो रहा है। देन सी द इफेक्ट, ओके, बोथ द लाइन्स इन येलो कलर, साइज whatever 6, and the face is Comic Sans MS। okay, then the next tag we will discuss next day। okay, then thank you students।